x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा. What is this system called as? Cartesian system. Yes, Cartesian system, Cartesian coordinate system. Basically, any point is of course given as a px comma y or ax comma y, anything, and of course points are represented by oftenly capital letters, and bracket में दो ordered pairs रहेंगे. Do you understand this word ordered pair? Yes, sir. Ordered pair मतलब सुना है क्या कभी, या Yes, sir. The relations. just an English word only. पेयर है x कॉमा y, दो जोड़ियों की तरह, जोड़ी की तरह रहते हैं पेयर, एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. लाइक एज इन 2,3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2. द ऑर्डर मैटर्स. सो these are called as ordered pairs. ठीक है. एंड इसका ऑपोजिट होगा अनऑर्डर्ड पेयर्स. अनऑर्डर्ड पेयर्स इज डिफरेंट, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली. तो एंड ऑल्सो कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव, ये सब जानना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल जनरल नॉलेज. और x को क्या बुलाते हैं, x कोऑर्डिनेट को? यस, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बुलाएंगे, और y कोऑर्डिनेट को Coordinate. just a word, ordinate. Okay, y coordinate is oftenly called as ordinate. Okay, now this is Cartesian coordinate system. Similarly, there is one polar coordinate system, which is more commonly used in physics and less commonly used in mathematics, but rarely this is also used in maths. मतलब आगे higher level calculus में polar coordinates हम लोग use करेंगे, so that the questions become easier. Polar coordinates में rather than the x coordinate and y coordinate, like x coordinate is basically distance from x axis or y axis. X coordinate distance from which point होगा, which line होगा? Yes, x coordinate is the distance from y axis, and y coordinate is the distance from x axis. I hope everybody understands that much. Yes, sir. Yes, sir. Polar coordinates are given in terms of r and theta, r being the distance from origin, and theta being the angle with respect to x axis. तो r और theta फिक्स करेंगे तो पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा क्या? हाँ सर. r and theta फिक्स करेंगे तो पॉइंट भी. तो ऑफनली थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा टू कवर ऑल द कोऑर्डिनेट्स? सर क्या बोल सकते हैं? थीटा का वैल्यू like 0 to 2 pi, 0 to 2 pi is enough. 0 to 2 pi is enough because उसके आगे लेंगे तो वही पॉइंट आता रहेगा. ये समझाओ या समझ में आ गया? नहीं सर, समझा. This doesn't cover all the points, no? Yeah, this will cover all the points provided r is positive and theta lies between 0 to 2 pi. This is just like vectors. वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है और इंक्लिनेशन थीटा है. अच्छा, ये अगर ये r थीटा का पॉइंट और x, y का पॉइंट अगर सेम ही चीज है, अगर if they are representing the same point, is there any relation between r and x, y? X square plus y square is equal to r square. Yes, r का वैल्यू जो है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, बिकॉज r इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 इज r. ओके, और थीटा को x, y को रिलेट कर सकते हो क्या? tan inverse of y by x. दैट इज राइट. ये ट्रायंगल बना देंगे तो ये दिस वैल्यू विल बिकम x एंड दिस वैल्यू विल बिकम y, और tan थीटा इज बेसिकली y by x और tan थीटा इज बेसिकली y by x. फिलहाल तो इतना समझ लो. अच्छा, नाउ बेसिकली r को xy के टर्म्स में और थीटा को भी xy के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. उल्टा कर सकते हो क्या? कैन यू राइट x इन टर्म्स ऑफ r? x इक्वल्स टू समथिंग लिख सकते हो क्या इस ट्रायंगल में? r cos theta. यस, इसका प्रोजेक्शन ही है ना, लाइक x कंपोनेंट r cos थीटा और y कंपोनेंट कितना होगा? r sin theta. r sin theta. So one can write x equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. So this is the general terminology. All these values will be used for the rest of the chapter. Okay. तुम्हें कुछ कॉपी करना है क्या इसमें जो बोर्ड पे लिखा है? सर कर लिया. Yes sir, 2 minutes sir. श्योर.
और तुम्हारा कोई ऑफलाइन लेक्चर हुआ क्या आज तक इस हफ्ते? नहीं सर। हाँ सर, हमारा नहीं होगा। ज्ञानेश्वर सर का हुआ, किसका हुआ? ज्ञानेश्वर सर का हुआ मेरा। ओह ग्रेट ग्रेट, सर हमारा आज होगा मोस्टली। नाइस। कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑफलाइन जिसका हुआ? सर सही था। सर बहुत बेटर था ऑनलाइन से। या बहुत मजा आया। ऑफलाइन इज ऑफ कोर्स बेटर। तुम्हारे स्कूल्स वगैरह भी फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो गए क्या? तो स्टार्ट तो हो गए पर हम नहीं जा रहे। ओके ओके मेरा कॉलेज चालू हो गया, लाइक स्टेट वालों का। ओके ओके ओके। कॉलेज रेगुलरली जाना पड़ता है क्या नीतीश? सर वीक में एक बार है, और मेरा फर्स्ट डे ऑफलाइन ही था, ओके मुझे ऑफलाइन बताया था। ओके। लिख के हो गया तो बताना। यस सर। हो गया सर। ओके सेकंड सर, वो लास्ट वाला। सर हाँ बोलना। सर 3D में r थीटा फाई होता है ना? पोलर हाँ आर कोऑर्डिनेट। थीटा फाई होता है, करेक्ट। आर थीटा फाई एक्स वाई जेड ऐसे भी होता है। केमिस्ट्री में वही कराया था 3D। ओके ओके ओके। उनका यूज वगैरह करेंगे अभी। इस स्ट्रेट लाइंस में तो हम लोग फिलहाल तो एक्स वाई और एक्स वाई को सेटिस्फाई करने वाले कर्व्स को सेटिस्फाई करेंगे, पढ़ेंगे। और स्ट्रेट लाइंस और आगे वाले सर्कल्स वगैरह चैप्टर में विल स्टडी ऑल द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर्व्स लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड ऑल। इन ऑफ कोर्स इन 12th स्टैंडर्ड विल स्टडी इक्वेशंस ऑफ स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इनके इक्वेशंस पढ़ेंगे। यस सर, हो गया। Now, most basic of all of them, the most basic formula in straight lines, which you guys have already studied, is basically distance formula. Distance formula, I am guessing everybody must have studied it in school. A x1 comma y1 और b x2 comma y2 होगा. So distance between a comma b, distance between a comma b is given as root of x2 minus x1 the whole square प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसका डिराइवेशन वगैरह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। किसी को नहीं पता है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। ओके, इन जनरल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर कोई बोले, o is often used as origin, o distance from origin is of course given as root of x1 square plus y1 square, root of x1 square plus y1 square. अच्छा, now other than this, if I ask you, I was asking what is the meaning of the word locus? Locus मतलब basically it is just a collection of points. It is just a collection of points. Like straight line is also locus, collection of many points which are inside this. Okay, तो collection of points ये तो just an English word to say. इस collection of points जो है, ये सारे के सारे points on this line will satisfy an equation. That equation is mostly called as the locus. The equation is called as the locus. For example, if I say P is a point such that distance from origin is always 5 units. Distance from origin is always 5 units. So agar if I ask you find locus of P,
देन लोकस ऑफ P मतलब अभी वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x, y जैसे रहेंगे और जिसका लोकस ढूंढना है। अगर मैं P को x, y ले लूं एंड आई जस्ट हैव टू अप्लाई दिस मैथमेटिकल कंडीशन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? x square plus y square का रूट ओवर Under root of x square plus y square is equals to 5. Or if I just square on both sides, the locus comes out to be x square plus y square is equals to 5 square or 25. This is the locus. तुम लोग ये locus को visualize कर सकते हो क्या? Distance from origin is always 5 units. सर्कल Yes, sir. इसका सर्कल होगा Circle रहेगा. Center क्या रहेगा? ओरिजिन Origin. Okay, so basically this is a very commonly asked questions. तो ऐसे तुम लोगों को इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, find the locus of the curve, find the locus of P. So basically here or we can say that find the locus of the circle. So इस क्वेश्चन में there is a known shape. हर बार ऐसे known shape नहीं आएगा, unknown shapes भी आएंगे. Though basically from JEE point of view or exam point of view, we are more interested in finding the equation of this line. The locus is collection of points satisfying a condition. Satisfying a condition. So locus can also be called as a curve. Locus is just a curve. Curve मतलब समझ में आता है ना, any path, or we can just say that it is a path of points. So इतना basic word है locus, ये बार बार यूज कर करके अलग से आ जाएगा. locus करके अलग सा चैप्टर नहीं है, just a terminology used in coordinate geometry. Okay. ये भी बोर्ड पे जो नहीं पता सब कुछ लिख लो और बताना. हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकस वर्ड यूज करना आज से ही. हो गया सर. Okay, done everyone else? नहीं सर Okay. और हफ्ते में कितने लेक्चर्स होते हैं? 6. तो 6 तो होते ही हैं, उसके अलावा जैसे डाउट्स हो तो वो भी. Okay. लेकिन एक दिन में सिर्फ 4 घंटे होते होंगे ना? हाँ यस सर तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होता. सर हमें p का लोकस निकालने बोला है. देन व्हाट इज p हियर? P is a name of any point. P is not a fixed point. P is any point on this curve. एंड लोकस इज द पाथ ऑफ दैट पॉइंट. हाँ. ओके सर. P is a general point. इसको और थोड़े से अच्छे से सजा के लिखेंगे. ये बस मैंने इंट्रोडक्शन के लिए इतना बेसिक किया है. तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है क्या? y कुछ mx mx y plus equals to c. mx plus c. इनफैक्ट जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, x एक्सिस y एक्सिस का इक्वेशन वगैरह, उसमें ऑलरेडी x एंड y यूज होते हैं. तो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो तो ऑफनली x, y की जगह कोई और सिंबल्स यूज करते हैं, p, q, और पूरा इक्वेशन सॉल्व करके लास्ट स्टेप में वापस से उसको x, y से रिप्लेस कर देंगे, सो दैट दे डोंट कंफ्यूज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन का x, y एंड लोकस का x, y. सो दैट ये वाली चीजें मैं I'll elaborate in a particular question after introduction of straight lines and all. सर लिख लिया. सर आपने जो बोला पी क्यू को रिप्लेस करता हूँ उससे बोलोगे? हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकंड. वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताने के बाद स्ट्रेट लाइन को इन्वॉल्व करते हुए लाइक एज एन डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या तुम लोगों को? हैव यू स्टडीड डिस्टेंस फॉर्मूला? Yes, sir. बाकी सबने भी पढ़ा है क्या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन? yes
दो लोगों ने ही पढ़ा है। यस सर। यस किसी ने नहीं, स्कूल में होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता, इसीलिए हेजिटेट कर रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी इसीलिए हेजिटेट कर रहा था डिस्कस करने के लिए। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद आई अगेन रिविजिट लोकस, तो उसमें बताऊंगा इब्राहिम कैसे करना है। बट फिलहाल के लिए एक्स कॉमा वाई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। फाइंड the locus of a point, find the locus of the points, find the locus of the points which are equidistant, find the locus of the point which are equidistant, from, find the locus of the point which are equidistant from A 3,4 and B 5,-2. Find the locus of the point which are equidistant from A 3,4 and 5 and B 5,-2. अगर पॉइंट को पी एक्स कॉमा वाई लिया है तो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एज वेल एज बी। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट करना है। एग्जैक्टली, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट करना है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए from 3,4 as well as 5,-2. So mathematically they are trying to say that PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस सेम है, PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इक्वल है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दो। That's right प्रभास। मानसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। पृथ्वी ऑल्सो कुछ कांस्टेंट टर्म भी रहेगा पृथ्वी। प्रभास, अच्छा वो टाइपिंग एरर होगा शायद, वो माइनस रहेगा। यस सर। जानवी गलत हो गया यार कैलकुलेशन। आर्यन करेक्ट, अनिरुद्ध गलत हो गया। PA is basically root of distance x minus 3 का square plus y minus 4 का square. I hope everybody did not get confused with this simple word equidistant. So distances are equal, that's all. This distance should be same as next distance. Squaring on both sides to remove the root. नहीं इब्राहिम, क्या कुछ गलत हुआ? Vedant is right. पृथ्वी कांस्टेंट का टर्म देख चेक कर। रूट कैंसिल ऑन बोथ साइड्स और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स में रूट निकल जाएगा, फिर
Carefully करो, what are you doing? X square y square cancel हो जाएंगे. Why is it taking so long? Only 3-4 students only sent me right answer. That's right, Ibrahim. -10x लेफ्ट साइड जाएगा, 4x बन जाएगा वो. -4y लेफ्ट साइड जाके -12y बनेगा. चेक करो, -12y आएगा. गलती से -4y लिख दिया क्या? चिनार करेक्ट. कांस्टेंट कितना आ रहा है? -4. लेफ्ट हैंड साइड 9 + 16 जो है ये 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा. बस दिस इज ओनली द लोकस. यू कैन जस्ट डिवाइड इट विद 4 टू look it simplified. So the final answer is, or the locus is basically x minus 3y minus 1 equals to 0. So this is the equation of the locus. To be more सानवी बताओ क्या डाउट है? That's it, Nitish. Equation of the locus is this. Okay. Now later stages में ये locus को identify भी कर सकते हैं, but this is such an easy locus that you can identify here only. Identifying the locus मतलब ये किसका equation है? Straight line. Straight line. The equation will be a straight line. The equation will be a straight line. So basically there are two ways of questions that are asked. Of course locus options में straight line, circle, पैराबोला करके ऑप्शंस रहेंगे, तो हम लोग इक्वेशन देख के फिर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे सून. और अदर देन दैट ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ द लोकस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. डिपेंड्स हाउ द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी. नाउ आई होप एवरीबॉडी हैज स्टडीड दैट दिस इज ऑफ कोर्स y = mx + c के फॉर्म में लिख सकते हो. हेंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. Okay, just logically speaking, like for you to visualize also coordinate geometry में there is a point A 3,4 and there is a point B 5,-2. How will be a point which is equidistant from both A and B? How will be a point? Perpendicular bisector. Yes, actually, a बीच वाला point है नहीं, any point here. So these are the collection of the points P which are equidistant from both A and B. Equidistant from both A and B. So like Ibrahim and Harleen are saying, this is basically the perpendicular bisector of the line segment AB. Perpendicular. So this is the इस line का equation तुम लोगों ने ढूंढा है. Basically इस line का equation sort of ढूंढा है. That is not the question, but still for you to understand. Okay. Is everybody done with this sum? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सानवी बताओ डाउट था क्या बीच में? Okay. Next. Cartoon arrays, everybody? Yes, sir. Okay. Next question. Find the circumcenter. Find the circumcenter of the triangle. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are A -2, -3, D -1, 0, and C 7, -6. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are
A, B, and C. A is -2, -3, B is -1, 0, and C is 7, -6. In the meantime, you solve. सबसे पहले circumcenter. I hope everybody understands. What is a circumcenter? Perpendicular bisectors of the side. That is right. A fundamental way to say is there's something called a circumcircle. Circumcircle is a circle which is passing through all the three vertices, and circumcenter is basically the center of that circle. Center of that circle. So we are supposed to find the center of the circumcircle. That is the question. Now, since P is the center of the circle, and the circle is passing through A, B, and C, so the radius of the circle can be given as what? PB, PC, PA. Yes, PA भी बोल सकते हैं, PB भी बोल सकते हैं, या PC भी बोल सकते हैं. Or in other words, one can comment that PA should be same as PB as well as PB should be same as PC, and all three of them are equal. That is correct, Vedant. Very fast, very good. So P को ढूंढना है हमें. क्वेश्चन वही है कि सर्कमसेंटर ढूंढना है. तो ऑफ कोर्स जिसको ढूंढना है उसको अननोन वेरिएबल्स अज्यूम कर लेंगे. P को फिलहाल x, y ले सकते हैं. P को x, y ले लो. And just apply the condition. Apply the condition twice. एक बार PA equals to PB भी करो और एक बार PB equals to PC भी करना. दोनों बार. Hemanga is right. Anirudh, what does that mean? Did you find the circumradius by chance? Yes, sir. Bhavika is right. So a right angle triangle. Okay. Right angle triangle होगा तो straight away midpoint of hypotenuse कर सकता है. Yes. Right angled at A रहेगा शायद. That side Ibrahim, Jairaj, Prithvi. जल्दी करना है, स्पीड बढ़ाओ. इक्वेशंस क्या है, कोई बता सकता है क्या? आर्यन गलत हुआ. PA इक्वल टू PB पे कौन सा क्या इक्वेशन आ रहा है? X plus 3y plus 6 is equal to 0. X plus 3y plus 6 equals to 0. And what about the second one? So वो गलत आ रहा है. अच्छा, तुझे कैसे पता गलत है? 4x minus 3y minus 21 equals 0.
4x minus 3y minus 21 equals to 0. भाविका भी बहुत दिन बाद क्लास अटेंड कर रही हो क्या? सर मैं हाँ एक्चुअली जीनियस में कर रही हूँ, वहाँ पे येलो में नहीं किया था मैंने। ओके ओके ओके, क्योंकि टाइम टेबल क्लैश हो रहा है या हाँ हेवी हो सर। गया? हाँ सर, टाइम टेबल क्लैश हो रहा है। चेक करो आर्यन, जानवी। सेकंड इक्वेशन करेक्ट है क्या ये? हाँ हाँ सही लग रहा है। बस P should be a point which should satisfy the first equation as well as the second equation. Since P is a point which is satisfying both the equations, so to find the point P, we have to simultaneously solve them. Or it should satisfy both the equations. So x plus 3y plus 6 equals to 0 as well as 4x minus 3y minus 21 equals to 0. Simultaneous solving, I hope everybody knows. Yes, sir. That's right, Janvi. You can just add both of them here to cancel out 3. X का value 3 आ जाएगा. If you put it back, you'll get the value of y. Y का value minus 3 आना चाहिए. So therefore the circumcenter is 3, minus 3. जैसे अनिरुद्ध ने किया, अगर if somebody asks you what is the circumradius कैसे करेंगे फिर? तो डिस्टेंस फार्मूला डाल देंगे। Just distance formula between P and any vertex. सही से a divided by 2 multiplied by sin है। हाँ लेकिन साइन है कैसे ढूंढने का यहाँ से? हाँ वही पूछ रहा था। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसलिए बोल रहा था। ओके ओके, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सीधा BC का लेंथ ढूंढ के by 2 कर सकता था। यस सर। Also like Anirudh is saying उस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नहीं, बट जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ये रेस कर दूं? ये हो गया कि नहीं? हो गया सर। यस भाविका, एक सेकंड बताता हूँ व्हाट ही हैज डन। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था भाविका, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे पता चलेगा आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है? हाउ शुड आई आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट? अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, ए बी एंड सी हमें पता है कोऑर्डिनेट्स, ए बी एंड सी हमें पता है कोऑर्डिनेट्स, व्हिच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इट? हाउ शुड आई नो? सर आंसू आ जाएंगे सर, लेकिन सबका हम लोग साइड निकाल सकते हैं लेंथ। हाँ, इतने छोटे से दर्द के लिए आंसू क्यों? तो ये तो इतना किसी का इक्वेशन अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो किसी इक्वेशन तो राइट एंगल ट्रायंगल नॉट नेसेसरली स्लोप अनडिफाइंड हो, वो रोटेटेड भी हो सकता है, बट लाइक द मोस्ट बेसिक वे इज यू कैन जस्ट फाइंड ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड सी ए का डिस्टेंस। ए बी बी सी सी ए तीनों डिस्टेंसेस ढूंढ सकते हो, तीनों डिस्टेंसेस से बता सकते हो ना कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है। हाँ सर। ऑफ कोर्स, तो इस क्वेश्चन में भाविका इट हैपेंस टू बी दैट ये वर्टेक्स, आई फॉरगॉट द वर्टेक्सेस, तो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे रहेगा। तो it happens to be that AB square plus AC square happens to be equals to BC square. So this has become a special case that it is a right angle triangle. यस सर। तो right angle triangle हो गया। तो right angle triangle की खासियत क्या है? सर्कमसेंटर कहाँ लाई करता है? midpoint of the hypotenuse. Yes, circumcenter will be the midpoint of the hypotenuse. अगर circumradius पूछेंगे तो circumradius will be basically the length of BC divided by 2. ठीक है? For a right angle triangle, circumcenter is the midpoint of hypotenuse. Okay, and what about the orthocenter of a right angle triangle? मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। Yes, a right angled vertex is only the orthocenter. Orthocenter is basically the right angled vertex only.
ओके, ये दोनों जनरल नॉलेज है। और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर कौन से ट्रायंगल में कोइंसाइड करेंगे? Equilateral. इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। यस सर। ओके, ये सब समझ में आ गया ना भाविका, जो भी तेरा डाउट था? हाँ हाँ आ गया सर। ओके, चलो राइट डाउन वन मोर सम। प्रूव दैट, अच्छा ठीक है, करा देता हूँ क्वेश्चन। प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन, prove that the distance between the points, prove that the distance between the points a cos alpha, a cos alpha, a sin alpha, and a cos beta, comma a sin beta. Prove that the distance between the points a cos alpha, a sin alpha, a cos beta, a sin beta is 2a sin alpha minus beta by 2. 2a sin alpha minus beta by 2. And bracket में लिख लो a is positive. Prove that the distance between these 2 points is 2a sin alpha minus beta by 2. सीक्वेंस एंड सीरीज का बुकलेट डिस्कस करने के लिए भी एक दिन अलॉट करना पड़ेगा। ऑन फाइन डे विल डिस्कस। how much of the booklet have you guys completed? सर 2A तक हो गया, 2A पूरा हो गया। Okay, 2A तक ही हुआ है क्या? सर पूरी हो गई। ओके ओके नाइस। पूरा अटेम्प्ट करके हो गया कि सॉल्व करके हो गया? अच्छा हो गया। सर 3-4 डाउट्स हैं आपको। ओके ओके, सर्वर के बारे में किस बात के लिए कंप्लेंट किया था? अनिरुद्ध तो सर्वर के किस बारे में कंप्लेंट किया था? चलिए क्वेश्चन हो गया। ओके ओके आर्यन,
हो गया सर। स्ट्रेट डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस हिम्मत दिखाओ। लिटरली स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा और यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा भी आएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, अगेन अनदर ए स्क्वायर बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। So it's a very famous formula. A square plus a square 2a square हो जाएगा। 2a square minus 2a square times cos a cos b plus sin a sin b is cos of a minus b, cos of alpha minus beta. हाँ सर 2a square कॉमन निकाल के 1 minus cos alpha minus beta। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? 1 minus cos 2a cos square theta. Correct. Yes, that is the formula. 1 minus cos theta equals to 2 sin square theta by 2. Also, for my curiosity, 1 plus cos theta क्या होगा? 2 cos square 2 alpha cos square. square theta by 2. This is basically 2a square times 2 sin square alpha minus beta divided by 2. तो 4a square sin square alpha minus beta by 2. Also इस क्वेश्चन में a पॉजिटिव क्यों दिया है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव है। What is in first quadrant? So नहीं A सर पॉजिटिव, पाएगा नहीं तो सर ए नेगेटिव होगा तो उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते ना। हाँ बेसिकली रूट ए स्क्वायर, वैसे रूट ए स्क्वायर क्या होता है? ए Mod A. रूट ए स्क्वायर ए नहीं यार, मॉड ए होता है। दैट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। रूट ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ ए होता है, ए पॉजिटिव है तो इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ ए को ए लिख दिया है। सो मेकिंग इधर में 2 2 जार 4, 4 का रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट ए लिख रहे हैं बिकॉज ए पॉजिटिव है। सो साइन स्क्वायर का रूट साइन है। इनफैक्ट टू बी वेरी एक्यूरेट दिस इज द करेक्ट आंसर, 2a टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इट डिपेंड्स इफ अल्फा इज अल्फा माइनस बीटा बाय 2, in which quadrant is it lying. The accurate answer is 2a times modulus sin alpha minus beta by 2. Okay, चलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला इतना बेसिक क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट ट्राइंग टू मिक्स इट विद अदर क्वेश्चंस। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के करेंगे। ये एरेज कर दूं या वेट करूं? नहीं सर हो गया हो गया सर। Okay, even these type of questions also I am not going to solve it, but you guys should know how to solve it. As in, अगर 4 vertices दे रखे, identify the shape as in parallelogram, rectangle, square, rhombus और trapezium। ट्रेपेजियम पे बाद में करते हैं। इन चारों में से कौन सा शेप कौन सा है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से? तो पैरेललोग्राम में लाइक ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। जस्ट स्लोली बताना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स शुड बी सेम, ए बी सी डी होना चाहिए, ए डी बी बी सी से बराबर होना चाहिए। ऑपोजिट साइड शुड बी डेफिनेटली बी इक्वल। ओके, व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जैसे AD इज इक्वल टू BC और DC इज इक्वल टू AB, और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो DB इज फर्दर डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स AC and BD should also be equal. Okay, now how can you, what about square and rhombus then? सारे सेम होने स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। सारे सेम होंगे तो दैट इज नॉट एनफ कंडीशन। सारे सेम होंगे तो rhombus भी हो सकता है। इन दोनों को चाहिए डायगोनल डिफरेंशिएट, सेम सर डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। यस, तो यहाँ पे डायगोनल्स भी AC और BD भी सेम होना चाहिए। rhombus में AC और BD अनइक्वल हुए
तो रोम्बस होगा, AC और BD इक्वल हो गया तो लाइक स्पेशल केस ऑफ रोम्बस इज स्क्वायर। ओके, तो ये सब जनरल नॉलेज ही माना जाएगा कि क्या तुम्हें कॉपी करना है? सर करना है, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे, डिस्टेंस फॉर्मूले ढूंढ ढूंढ के यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा शेप है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बट इस पे आई एम गेसिंग क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, या कराऊं कोई क्वेश्चन? नहीं सर नहीं। नहीं सर। बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है गाइस, और कुछ नहीं। सर रोना आ जाएगा सर। हाँ, तूने अभी एक्चुअली लेंथी क्वेश्चंस देखे ही नहीं लग रहा है जानवी। ये तो सर कुछ इतना तो रोना बस these are nothing actually। सर जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तब लेंथी चीजें चलती है, सब फालतू क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन वाला में गुस्सा आता है। सिर्फ लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो केवीपीवाई में भी है क्या? नहीं सर। ओके ओके, मतलब थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी थोड़े केसेस काउंट करते करते बहुत ये सर उसमें भी दर्द होता है, बट सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते टाइम इतना दर्द नहीं होता। ठीक है, अभी कैसे भी हो सॉल्व हो जाए वही बड़ी बात है। हो गया सर। सबका हो गया? एवरीबॉडी एल्स? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड the locus of P, find the locus of P if PA plus PB, if PA plus PB equals to 12, where A is -4,0 and B is 4,0। सर ट्रायंगल है क्या है सर? कुछ नहीं बोला है, वो ही तुझे ढूंढना है। नहीं सर, क्वेश्चन क्या है सर? Find the ट्रायंगल। locus of P. Find locus of P if PA plus PB equals to 12 और A और B दे रखा है। It's not y-axis Aryan। हाँ सर सॉरी मिस्टेक हो गई। तूने PA equal to PB sort of कर लिया। हाँ That is correct, Dhruv। I'll explain it in some time in detail। दृशा आर यू देयर? दृशा एब्सेंट है शायद ना आज। दृशा करके तुम्हारे क्लास में है ना एक लड़की? पता नहीं सर, कोई बात करते हुए देखा नहीं। अच्छा, मुस्कान आर यू देयर? यस सर। ओके ओके, आंसर्स बताओ आ रहे तो। इज श्रीजिता फ्रॉम योर क्लास? यस यस सर। वो भी एब्सेंट है आज। काफी लोग एब्सेंट है क्या? आजकल ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, वैसे तुम्हारे क्लास में 35 या 36 होते थे शायद ना? हाँ सर, टीचर को इंक्लूड करके 36। ठीक है, +(2) का एरर तो होता ही है।
सो मुझे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -10 आ रहा है, हो नहीं सकता। क्लियरली नहीं हो सकता। बता क्या किया तूने? सो वही डिस्टेंस फॉर्मूला x प्लस 4 पी ए क्या है? रूट ऑफ x प्लस 4 द होल स्क्वायर। रूट अप्लाई किया ना, या रूट ही भूल गया? रूट भूल गया sir। क्या तू? ओके, नाउ आर यू गाइस स्क्वेयरिंग डायरेक्टली और थोड़ा रीअरेंज करके स्क्वेयर कर रहे हो? सर एक सेकंड सर एक टर्म को राइट साइड पे लेकर जाएंगे, यस, उसके बाद एक sir। टर्म को राइट साइड लेके जाके स्क्वेयर करो गाइस। टेक वन ऑफ द रूट टू द राइट हैंड साइड एंड देन स्क्वेयर इट। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। अभिनव, आर यू देयर इन द क्लास? अभिनव भी एब्सेंट है, पता है कि निधीश क्यों? सर उसने एक दिन बोला था वो बाहर जा रहा है, पता नहीं कितने दिन के लिए। ओह अच्छा। Then squaring on both sides. X plus 4 the whole square or x square plus 8x plus 16 plus 5 square equals to 144. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या प्रभास इसको? मुझे uh, वन 144 प्लस इसका एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 24 into root of x minus 4 the whole square plus y square. प्रत्युष इस क्लास में है क्या? नहीं, ठीक है। सिक्सटीन भी कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट 16x minus 144 equals to minus 24 into root of this thing x minus 4 the whole square plus y square. सिर्फ रूट को एक साइड रख के वापस से स्क्वायर करो। That's correct पृथ्वी, that's correct प्रभास। जल्दी करो ध्रुव, आंसर आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे हो कि कुछ कैंसिल करके स्क्वायर कर रहे हो? लाइक 8 से कैंसिल कर सकते हो? You need to square it again. क्या जानवी सो गई क्या करते करते? नहीं सर, सर इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। हाँ वही सर सर बहुत बड़ा कह रही है इसलिए। ओके ओके, कैंसिल करके स्क्वायर कर रहे हो तो थोड़ा इजी आएगा। 16 और 144 को ऐसे ही रखोगे तो बड़ा नंबर आएगा। ओके, इतना जो लिखा है मैं रेस कर रहा हूँ।
सर आया सर, आंसर आ गया फाइनली। भेजना करेक्ट है कि नहीं चेक करता हूँ। आर्यन वो 36x नहीं रहेगा, बाकी सब सही है। जानवी कांस्टेंट गलत हो गया यार। That's right, Janvi. Nidish correct है, good one. So is Apur correct. What about you, Hemanga, Chinar, Mansi, Ishan? जल्दी करो, हरलीन, मैत्रेयी, सर मेरा आंसर इब्राहिम करेक्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज लेंथ ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी लेंथी। This question is going to be a part of a bigger question later. So you should be able to just do it in like 1 minute. सर ये ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कराए हैं। ओके ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कर लिए क्या क्वेश्चंस? सर डिस्टेंस फार्मूला नहीं सर, मतलब बस यही इक्वेशन। अच्छा, रूट को सॉल्व करना है। हाँ सर, और सर खुद मतलब पीएपी भी लेते थे। मैं ओह, सोचता अच्छा था क्यों, अच्छा। फिर अभी मुझे समझा शायद इसके वजह से ही लेते हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ वही। उसमें एक्स ढूंढने के लिए बोलते थे क्या, वाई का वैल्यू देके? नहीं सर, वाई नहीं होता था, सिर्फ एक्स होता था। ओके ओके ओके। क्वाड्रेटिक खत्म हो गया तुम्हारा। मुस्कान करेक्ट है। हाँ हेमंगा, सर, एक्स एंड वाई के टर्म्स नहीं आएंगे। क्वाड्रेटिक खत्म हो गया एवरीबॉडी। सर 2-3 क्लास में होगा मोस्टली, क्योंकि लोकेशन पे पहुंच गया। अच्छा, लोकेशन ऑफ द रूट्स, हाँ वही लास्ट पार्ट है। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक के आगे क्यूबिक इक्वेशंस भी बेसिक मैथ्स में किया था क्या? सर ने क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाया था। हाँ मतलब वही क्वाड्रेटिक में कराते हैं नाम, लाइक फोर्थ डिग्री इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब पता है क्या? हाँ सर, हाँ। 2 at a Yes, time वो sir. सब। हाँ, 2 at a time, 3 at a time वाला, यस यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। और क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक का रेंज सर कल ही पढ़ा। सर कल ही किया था, Just किया क्या? किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसमें और एक ट्विस्ट डाल के क्वेश्चंस आते हैं कि एक रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कब रहेगा? सर हाँ ने सर, बोला वो सर डिनोमिनेटर का अगर रूट न्यूमरेटर के उसके बीच में होगा तो वही होता है। हाँ, दैट ओनली इन स्पेशल केसेस, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर होगा तो, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होगा तो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो सर अगर सिमेट्रिक या तो फिर +1 -1 कर देंगे, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके d को ग्रेटर देन 1 कर देंगे। 0 0। सर 2 बार इनइक्वालिटी सॉल्व करने पड़ेगी। हाँ 2 बार करना पड़ेगा, एक बार डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे, फिर सेकंड टाइम लेस देन 0। वो y ग्रेटर देन 0। हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। हाँ वो इम्पोर्टेंट है एडवांस के लिए, जे में आ चुका है वो। मानसी करेक्ट है, रोमा करेक्ट है। बहुत टाइम लगा दिया। सर मेरा बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था तो पूरा करना पड़ा था वापस। हेमंगा चेक कर, 72x और 70 वो कैंसिल हो जाने चाहिए वो टर्म। मुस्कान करेक्ट था, वेदांत ऑल्सो। इधर है फाइनल आंसर जो बहुत लोग बता रहे हो करेक्ट है, 5x² + 9y² = 180। इसको थोड़ा सा एक और तरीके से लिखता हूँ, जस्ट फॉर बिकॉज दैट इज द वे वी राइट इट इन द 12th स्टैंडर्ड। ये 180 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा?
x square by 36 x square by 36 plus y square by 20 20 is equals to 1. Okay. This x square by something positive number, y square by another positive number equal to 1. Such kind of locus is called as an ellipse. वो जो elliptical orbit वाला shape है वही ellipse ही है. So actually this is an ellipse which will study in 12th standard में एक अलग सा chapter है ellipse करके, जिसमें हम लोग इसी equation के ऊपर हम लोग will study it in detail. Okay. Now before that, before getting this answer, another thing for you, just for you to realize or get an idea, basically कि PA plus PB equals to 12 है, PA plus PB equals to 12 है, तो समझो A एक fixed point है, B एक fixed point है. It's like हम लोग practicals में, maths के practicals में हम लोग ये करते थे, like during my time, I don't know अभी कराते कि नहीं, but still ऐसे मान लो कि एक board है, there is a board, इसमें दो पिंस को फिक्स कर दिया ए और बी के पास, ए और बी के पास दो पिंस को फिक्स कर दिया ए एंड बी के पास, और एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 12 यूनिट्स है, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 12 यूनिट्स है. इस स्ट्रिंग को एज मच एज पॉसिबल टाइटली पुल कर दो, एज मच एज पॉसिबल इफ यू पुल इट, तो ये जो पॉइंट पी है, ये जो कॉर्नर ऑफ दिस स्ट्रिंग है, तो ये पी ए प्लस पी बी का टोटल डिस्टेंस 12 रहेगा. अभी इसको पुल करके I'll just start moving it. I'll just start moving it here and there. So P का सिर्फ ये एक ही पॉइंट रहेगा कि और भी पॉइंट्स रहेंगे? तो बहुत सारे रहेंगे. बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे. Can you guys predict how the point P will be if I just keep rotating it? सर्कल जितना सिलेक्ट रहेगा, ऐसा एक शेप आएगा, ऐसा एक शेप आएगा. ये जो शेप आएगा वो एलिप्स बनेगा. So in fact PA plus PB equals to 12 जो है हमेशा वो एलिप्स रहेगा. PA plus PB equals to 12. ठीक है. This is nothing to do with our chapter right now, but visualization is better. Okay. Are you guys done writing this? yes Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करना, सिमिलर सा ही है बट स्टिल अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा आज की क्लास में. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी. सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ. फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, फाइंड द लोकस ऑफ पी सच दैट पी ए माइनस पी बी. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, कैलकुलेशन इस बार थोड़ा इजियर रहेगा. 4 कर दिया. पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 4, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 4. And the coordinates of A are 4,0 and B are minus 4,0. Just like the previous question, PA plus PB की जगह PA minus PB है. Find the locus of a point P such that PA minus PB equals to 4. Give it a try. I'll just come in 2 minutes. Get some water.
Did anybody get the answer? सब बस होने वाला है. Sure. Once again, it is highly advisable to take one of the root to the other side and square. क्या हुआ, क्या बताया अपर्णा? आंसर भेजा, चेक करके बताओ सही है कि तेरी आवाज को क्या हुआ? नहीं। सर एलर्जीज। क्या तबीयत खराब है तेरी? मुस्कान करेक्ट, इब्राहिम करेक्ट, वेदांत करेक्ट, अपर्णा करेक्ट है। क्या तबीयत खराब है क्या? नहीं सर, ऐसे ही मतलब एलर्जीज होते, गला You're बैठ just trying to जाता है। be just trying to be polite. क्या नहीं लास्ट? नहीं नहीं सर, एक्चुअली एलर्जीज होते से गला बैठ जाता है। अच्छा, आर्यन करेक्ट है, अपूर्व करेक्ट है, वेदांत, इब्राहिम, मुस्कान, अनिरुद्ध, you're all correct again. Yes, वेदांत। मानसी, एक्स का टर्म नहीं आएगा यार, वहां पे कुछ गड़बड़ किया, और कांस्टेंट भी मिस्टेक हो रहा है। और अपर्णा, सानवी, तुम लोग सेंटर से भी क्लासेस अटेंड करते हो क्या कभी? सर मैं तो करती हूँ। सर अच्छा, वो भी अच्छा आइडिया है। लाइक आईपैड वगैरह लेके जा सकते हो इफ यू हैव, और फोन भी चलेगा वैसे। लैपटॉप इज आल्सो गुड एनफ। यस सर। मैकबुक वैसे भी इतना लाइट होता है। हाँ सर। हरलीन करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद -16x आएगा। मानसी, चेक करना इस स्टेप तक करेक्ट आया कि नहीं। सर वो मैंने -8 ले लिया एक्चुअली। ओके, किधर? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड लेंगे तो राइट। डजंट मैटर। स्क्वायर करेगी तो वैसे भी माइनस का प्लस हो ही जाएगा। यस सर, आई एम चेकिंग और क्या किया है। दैट साइड प्रथमेश। ऐसे आता है, दोनों स्क्वायर्स के बीच में प्लस रहता है तो एलिप्स आता है, दोनों स्क्वायर्स के बीच में माइनस रहता है तो दिस शेप इज लेटर बीन नेम्ड एज हाइपरबोला। दिस शेप इज लेटर नेम्ड एज हाइपरबोला। हैव यू एनकाउंटर्ड हाइपरबोला बिफोर? यस Yes, सर, sir. कहाँ पे? केमिस्ट्री में। ओके ओके। सर लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकंड ग्राफ में हाइपरबोला होता है केमिस्ट्री में। हाँ, वो ये वाला हाइपरबोला होता होगा। या एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके ओके। इनफैक्ट दिस हाइपरबोला इज, इस हाइपरबोला के ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? हम लोग ने tan x के ग्राफ में किया था। tan x के ग्राफ में ये जो लाइन है, ऐसा लगता है कि जाके ऑलमोस्ट मिलने वाला होता है। इस लाइन का कोई नाम था, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट। तो यहाँ पे ये जो हाइपरबोला के कितने एसिम्पटोट्स हैं? दो एक्चुअली। लाइक x एक्सिस भी इट सीम्स एज इफ इट्स गोइंग टू मीट इवेंचुअली, एंड y एक्सिस आल्सो। तो इनफैक्ट ये दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से है।
तो इसीलिए this is also hyperbola, that is correct, but in mathematics we are going to call it as a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola because it is a special hyperbola जिसमें दोनों 90 डिग्रीज पे है. हाइपरबोलास के इक्वेशंस सॉर्ट ऑफ ऐसे रहेंगे. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मच मोर स्पेशल. समथिंग अपॉन एक्स, आई डोंट नो, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट में आया होगा शायद. हाँ सर. Yes, sir. Yes. फेयर इनफ. इधर है. फिलहाल के लिए समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर रहेगा तो हाइपरबोला. ये एलिप्स हाइपरबोला एंड ऑल ये सब एक्चुअली डिस्टेंसेस को इन्वॉल्व करने वाली चीजों में ज्यादा, ऑफ कोर्स यूनिवर्स में अर्थ रोटेशन ये सब तो है ही, लाइक रिवोल्यूशन वगैरह में, मूवमेंट ऑफ गैलेक्सीज वगैरह. इनफैक्ट अगर एट ए स्मॉलर लेवल ऑन अर्थ की बात करें, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन करके कभी सुना है क्या? सर 3 पॉइंट से एक जगह को लोकेट करना. करेक्ट करेक्ट प्रभास. एनीबॉडी एल्स ट्रायंगुलेशन करके सुना है क्या? इज मतलब दैट जस्ट अ निकनेम गिवन टू इट समथिंग कि बेसिकली ऐसा है कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट पी है, अगर पी का डिस्टेंस ए से और पी का डिस्टेंस बी से अगर पता है, पी का डिस्टेंस ए से 5 यूनिट है, पी का डिस्टेंस बी से भी 4 यूनिट है, तो पी को फिक्सली यूनिकली डिटरमाइन कर सकता है क्या? नहीं सर. नहीं कर सकता एक्चुअली. और भी पॉइंट हो सकता है जो सेम सेटिस्फाई करे. पूरा एलिप्स बनेगा. लेकिन एक और पॉइंट सी है, सी से भी मान लो डिस्टेंस पता है, 6 यूनिट्स है मान लो पता है, तो पी फिक्स हो जाएगा क्या? हाँ सर. तो मतलब एक्चुअली सॉर्ट ऑफ इसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं. मतलब 3 पॉइंट से हम लोग यूनिकली वो पॉइंट, 3 पॉइंट से अगर डिस्टेंस पता है तो वो पॉइंट कहाँ है अगर हमें पता चल जाएगा. तो ऑफनली जैसे जीपीएस वगैरह जो है ऐसे ही काम करते हैं. जैसे दिस इज लाइक ए टावर, मतलब ऐसे टावर्स है तो तीनों टावर्स है, मतलब टेलीकॉम टावर्स वगैरह है, तो उन तीनों टावर्स से वी कैन फाइंड कि कितना सिग्नल आ रहा है. मतलब आप लाइक तुम्हारे फोन पे कितना सिग्नल आ रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ से पता चलेगा कि वो कौन से टावर से कितना डिस्टेंस है. तो इससे पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ पे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लाइक कैसे बताऊं, लाइक इवन मतलब अगर अंडर वाटर भी सबमरीन है, इफ यू वांट, मतलब मिसाइल आ रही है तो यू जस्ट हैव टू, मतलब ऑल दीस थिंग्स वगैरह. पर जोक से आई हर्ड इट इन मूवीज. अच्छा हाँ, मूवीज में भी ऐसे ये वही सबमरीन और इस टाइप के मूवीज में, लाइक इन द सी वगैरह, टू फाइंड वेयर द अदर शिप इज, समथिंग ऐसे ट्रायंगुलेशन वगैरह यूज होते हैं. तो यहाँ पे तो हम लोग, हाँ, तो एक्चुअली वही तो मतलब इफ द मूव, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, इफ द शिप इज मूविंग इन सच ए मैनर कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी पॉइंट, दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट है, ये दोनों का सबट्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट है, तो विल गेट सॉर्ट ऑफ ये शिप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ऐसे एक और पॉइंट के रेस्पेक्ट से भी ऑब्जर्व करेंगे तो विल जस्ट आइडेंटिफाई वेयर इट इज. सो ऑल दीज थिंग्स मतलब यूज होता है, मतलब है वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही, बट एट ए हायर लेवल यूज. इधर है. हाँ, अपने को इतना सोचना नहीं है फिलहाल के लिए. तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रहता है, सब समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर रहेगा. तो ठीक है, ओके. एरेज कर दूं क्या ये? हाँ सर. आगे मानसी, फिर करेक्ट आंसर. यस सर. यस जानवी, तेरा भी करेक्ट है. और मैंने इक्वल टू 0 करना भूल गई शायद, बाकी सब सही था. हाँ सर, इक्वल टू 0. Yes, Prithvi also right. Okay. Now one last question locus का, इस टाइप के क्वेश्चंस का. Find the locus of P. हरलीन, भाविका, तुम लोगों का भी आ गया ना ये सम? हाँ सर आ गया. Find the locus of P which is equidistant from, this will not involve much calculation, which is equidistant from 2,0, which is equidistant from 2,0 and y-axis. Find the locus of P which is equidistant from
2,0 and y axis. Equidistant from the px comma y होगा तो x comma y का distance from 2,0 should be same as x comma y का distance from y axis. So distance from 2,0 is nothing special. Distance formula. What does distance from y 2,0 axis? x axis है ना, क्या क्या? so 2,0 x axis में, वो भी x axis का ट्रीट कर सकते हैं। x axis पे है तो x axis के साथ क्या? नहीं सर, एक मिनट। Okay, that side Prabhas, a point P है, उसका distance from y axis कैसे क्या होगा? अगर point x comma y है तो इसका distance from y axis क्या होगा? X रहेगा, x रहेगा. Distance from y axis is basically x only. चिनार करेक्ट, मानसी एक y है शायद फर्स्ट टर्म, बाकी सब सही है. जानवी गलत हो गया यार. Yes, Mansi, that's understood. Root of x minus 2 का square plus y square equals to x करना है. Vedant is right, मुस्कान is right. ना मुस्कान x का कोएफिशिएंट 4 आएगा क्या, चेक कर. That's right, Aparna. जिनका आ गया, can you guys approximately try to predict how the movement of the point is? Can you try to predict the, try to approximately draw the graph, और ये information से draw करने की कोशिश करो, not from the locus which you have found. भाविका +4 आएगा शायद constant. अपर्णा को किसी ने नजर लगा दी. लास्ट क्लास में किसी ने बोला ना कि अपर्णा इज दैट गर्ल हु टॉक्स अ लॉट करके. सर उसने कल चॉकलेट केक खाया और वो एलर्जी है उससे. So मेरे को actually chocolate से and like milk and उस दिन तूने जो भी जहां से भी केक मंगवाया, सर seriously उसमें कुछ है. उसमें कुछ था. मुझे मेरे भी तब से गला खराब हो गया. तो मेरे को क्या पता. तूने खरीदा है कि घर पे बनाया? नहीं सर, खरीदा. Actually मैं ना वो केवी लेक्चर का वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, वो शायद एक्सपायर्ड केक होगा. सर केवीपीवाई का वीडियो देखकर उस बंदे को पकड़ने वाले जिसने बोला था. अच्छा, ओह, अरे लेकिन आयरॉनिकली केवीपीवाई का वीडियो है नहीं. यस सर, मैं बिकॉज वो राहुल सर के अकाउंट से रिकॉर्डिंग किया था और सर कह रहे कि मुझे नहीं मिल रहा है. इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, दैट्स ऑल. x square minus 4x plus 4 plus y square equals to x square. इजी है, लोकस तो बहुत इजीली आएगा. y square equals to 4x minus 4 और समथिंग. सब कुछ एक साइड लिख सकते हो. यू कैन जस्ट हाउएवर यू राइट. सबका करेक्ट है, जानवी, वेदांत एंड ऑल. ओके, like I was saying, did you guys approximately try to draw the graph?
Like, can you guys predict कि देखो 2,0 like Anirudh has initially said कि of course it is on x axis. एक point P ऐसा है कि उस point P का distance 2,0 से और y axis से equal है. It is equidistant from both 2,0 as well as y axis. Can you show me one such point which is equal from y axis से distance और 2,0 से distance equal है? 2,2. No, 2,2 ये रहा. हाँ, yes, sorry, 2,2 is correct. और can I say simple 1,0 बीच का point? Yes, sir. In fact, यहाँ से will I move vertically up or vertically left or right? Right. Right. ऐसा point जहाँ का y से distance और 2,0 से distance equal होना चाहिए. ऐसे points, ये सारे points का collection का shape ऐसे आएगा. समझ आ रहा है कि shape कैसे रहेगा? Yes, sir. In fact, ये shape, इस shape को हम लोग बुलाएंगे parabola. इस shape को हम लोग बुलाएंगे parabola. तो in fact ये वाला question का आंसर parabola है. इधर फिलहाल के लिए इतना समझो, पैराबोला में क्या होगा कि एक स्क्वायर रहेगा और एक मतलब एक्स और वाई में से दोनों में से एक क्वांटिटी स्क्वायर में रहेगा और एक क्वांटिटी स्क्वायर में नहीं रहेगा. दैट इज अ लेमैन वे टू आइडेंटिफाई. देयर आर सोफिस्टिकेटेड वेज टू आइडेंटिफाई व्हिच विल स्टडी इन द चैप्टर पैराबोला. तो पैराबोला करके एक कंप्लीट चैप्टर है, एलिप्स करके एक चैप्टर है, हाइपरबोला करके एक चैप्टर है. फ्रॉम स्पेशली इन जेईई एडवांस में आते हैं मेनली. दे आर नॉट देयर इन सीईटी एंड ऑल. जैसे कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ax square plus bx plus c. In fact, this is also a shape of a parabola. That is why we say that the shape of the quadratic is a parabola. इधर ये क्वेश्चन हो गया ना? और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर अगर ये सेम चीज लेफ्ट साइड पे भी क्रिएट हुई तो उसको हाइपरबोला बोलेंगे ना? हाँ, लेकिन द बिहेवियर ऑफ द कर्वेचर इज डिफरेंट. जैसे कि पैराबोला इस तरीके से मूव करेगा कि एक पॉइंट और एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस हो. हाइपरबोला ऐसा नहीं होता एक्चुअली. हाइपरबोला का कर्वेचर ना थोड़ा सा लार्ज रहता है. लाइक तीनों में एक साथ बना के दिखा दूं तुझे. मतलब हाइपरबोला ना ऐसा थोड़ा सा बड़ा रहता है. मतलब ये एलिप्स है, ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है. हाइपरबोला इज लाइक मोर ओपन देन पैराबोला. ओके सर, ओके. एंड एलिप्स इज लेस ओपन. मतलब एलिप्स ट्राइज टू कन्वर्ज बैक. हाइपरबोला विल ट्राई टू डाइवर्ज एज मच एज पॉसिबल. पैराबोला बीच का चीज है. ठीक है, एरेज कर दूं ये सब? हाँ सर. यस सर. It is an oftenly misconcept that two parabolas make a hyperbola. ऐसा नहीं होता. हाइपरबोला के दो ब्रांचेस है, बट उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है. ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? और पैरामीटर मतलब सुना होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में. पैरामीटर मतलब समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू मेजर. मतलब समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू मेजर. थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इट विल कम बैक. पैरामीटर मतलब समथिंग दैट इज यूज्ड टू मेजर. तो एक्चुअली तो बेसिकली क्वेश्चन ही दे देता हूँ. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट whose parametric coordinates are first question x equals to 2t, y equals to 3 minus 4t. Find the locus of a point whose parametric coordinates are x equals to 2t and y equals to 3 minus 4t. Here t is the parameter. t is the parameter मतलब t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. 0, 1, 2, 3, 4 एनी वैल्यू. -1, -2, -3. अगर t का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कुछ आएगा. t अगर 0 हुआ तो x will be 0, y will be 3. t अगर 1 हुआ तो x will be 2 and y will be -1. ऐसे we can write down. So we are trying to find a curve. We are trying to find a curve which is passing through the points
0,3, 2, एंड सो ऑन, ऐसे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. सो बेसिकली वो कर्व ढूंढना है मतलब कर्व ढूंढना है मतलब, या लोकस या तो कर्व ढूंढना है मतलब बेसिकली हमें एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन चाहिए और टी नहीं चाहिए. तो इन अदर वर्ड्स दिस कैन बी समराइज्ड इनटू अ सिंपल फ्रेज, eliminate t. All we have to do is eliminate the parameter. Eliminate the parameter. You understand that elimination the parameter मतलब क्या करूं अभी? सर ट्रैजेक्टरी बनाना है ना बस. हाँ, ट्रैजेक्टरी बनाना नहीं, इक्वेशन ढूंढना है बेसिकली. ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन ढूंढना है. ऐसा तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ढूंढना है और टी हटाना है. टी को रिमूव करना है तो क्या करूं? सर इनटू 2 पे तो ऐड t इक्वल्स x/2 कर लो और y के उसमें डाल दो. फेयर एनफ. t इक्वल्स टू x/2 करके सेकंड वाले में डालेंगे. और लाइक जानवी है स्मार्टली सेइंग कि इसको 2 ट्वाइस कर देंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे और ऐड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा आंसर? 2x plus y equal to 3. 2x plus y equals to 3. So this is the locus. This is the locus. 2x plus y equals to 3. और vice versa भी बोल सकते हैं. The parametric coordinates of this line are these. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से लाइन ढूंढना और लाइन से वो ढूंढना, ये वैसे वर्सा भी होना चाहिए. तो बेसिकली लोकस ऑफ ए पॉइंट कभी कभी हमारे ईज के लिए हम लोग एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो उसके बाद लोकस कैसे ढूंढना है वो हम लोग पहले बेसिक कर लेंगे. That said, Aryan, Chinar, and everybody who has sent. सर 3x plus y equal to 2x plus ये जो चीज आया सर, इससे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहाँ से लिखेंगे? तो x को t ले ले बस सीधा, तो y आ जाएगा कुछ. x को t लेगी तो y क्या हो जाएगा? 3 - 2t. बस उतना ही है. ये तो x कैसे आएगा? क्या क्या? x को कोई भी पैरामीटर, लाइक x को t+1 भी ले सकता है, x को tan थीटा भी ले सकता है. लाइक जस्ट ए न्यू पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना यूजलेस है, बिकॉज इतना सिंपल है कि क्यों इंट्रोड्यूस करूँ लग रहा है. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. ये एरेज कर दूं क्या जो लिखा है? यस. पहले जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, दैट x and y both are in terms of a new variable. Parametric coordinates, this is the start of parametric coordinates. This parametric coordinates coordinate geometry में ऐसा basically elimination के लिए use होता है for ease of calculation. The ease of calculation के लिए heavily parametric coordinates are used in differentiation and integration. तो differentiation and integration में I don't know तुम लोगों ने integration में substitution करके कुछ किया क्या? Integration में substitution करके कुछ? हाँ यस सर. हाँ, तो substitution में कुछ और ऐसा t के टर्म्स में या तो आई डोंट नो u या v के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में पुट करते होंगे. So that is basically you're introducing a parameter basically so that the integration becomes easier. जैसे सेकंड क्वेश्चन, लोकस ढूंढना है x and y का in the parametric coordinates are these: a cos theta, a sin theta. So x is equal to y cot theta. No. Now in the answer you should eliminate the parameter. The answer should not be in terms of theta at all. The answer should not contain theta. Most important. The answer should not contain theta. सर हाँ बता. सर ए होगा तो चलेगा? क्या क्या? ए होगा तो चलेगा? ए होगा तो चलेगा. Here theta is parameter. Theta is parameter. Let वो भी लिख लो. Theta is the parameter. सर y equals a sin of root a square minus x square upon a. सेकंड वाला हाँ सर. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेडली बताया है. x square plus y square is equal to a square. That is right actually. थीटा को एलिमिनेट करना है तो बेसिकली cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना है. तो cos थीटा एंड sin थीटा आर इनहेरेंटली रिलेटेड बाय सम रिलेशन गाइस. स्क्वायर करके ऐड कर दो. लाइक x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. If I add both of them,
I'll get x square plus y square is equals to a square. This is the locus. In fact, ये locus किसका है? कौन से कर्व का है? सर्कल सर्किल का. तो सर्किल्स के चैप्टर में पूछेंगे सर्किल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब दिस इज द आंसर, a cos थीटा a sin थीटा. इब्राहिम समझ गया क्या? हाँ सर. पैरामीटर थीटा है। ठीक है, ए और बी आ सकते हैं, थीटा इज पैरामीटर इन ऑल ऑफ देम, सेकंड थर्ड फोर्थ में. सेकंड का आ गया. यस, सेकंड का आंसर x square plus y square equals to a square. चिनार ऑल ऑफ देम. थर्ड का ऑफ कोर्स रिवर्स लिख दिया शायद. आई मीन लास्ट का सर बट साइन. एक इक्वेशन से हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना. अभी सपोज x इक्वल टू a/√2 ले लिया तब भी सेटिस्फाई हो रहा है. जरूर x को a/√2 इसमें नहीं सर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a/√2. यस, कुछ भी ले सकते हैं एक्चुअली. तो बाय एक्सपीरियंस यू विल चूज एन कन्वीनियंट थिंग सो दैट इट विल सर्व द पर्पस. ओके सर. मतलब यू कैन चूज एनीथिंग एक्चुअली. इस क्वेश्चन में भी x को t ले सकता है, तो y का वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर करके आएगा. यस सर भाई. तो थर्ड वाले में एलिप्स बनेगा ना. हाँ, एक्चुअली इक्वेशन एलिप्स का आएगा. जस्ट फिलहाल के लिए गाइस, एलिमिनेशन ऑफ द पैरामीटर, दैट इज द फोकस. सर थर्ड और फोर्थ का सेम आंसर नहीं सर, एक में -1 तो साथ है. यस. अरे क्या आइडेंटिटीज गलत यूज कर रहे हैं क्या? सर सेम वन. Okay, second question, I hope nobody got it out. Yes, that is right. Second, third, fourth में फिर भी तुम लोगों ने कर्व देख के प्रेडिक्ट कर लिया कौन सा कर्व है. हर बार ऐसे फेमिलियर कर्व नहीं आएगा, बट स्टिल इक्वेशन से मतलब है, इसीलिए. जानवी, कुछ तो वो कौन से आंसर का भेजा तूने? तो 2 और 3 और 4. b स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ तो मिस्टेक है. थर्ड वाला बता कैसे किया? सर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे में से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय b स्क्वायर. हाँ, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है. फिफ्थ वाले में से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, x y. थैंक यू फॉर रिवीलिंग इट फॉर एवरीबॉडी. इब्राहिम, लेफ्ट हैंड साइड माइनस आएगा शायद बीच में, फोर्थ वाले में. हाँ सर माइनस. ओके, वैसे थर्ड वाला cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट कर रहे हो फिर? तो जैसे मैंने बोला, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर. ठीक है, सबने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करता हूँ. x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा, और sin स्क्वायर थीटा को y स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिखा ना जानवी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तूने तो क्या आएगा? b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x. ओ हाँ, a स्क्वायर y स्क्वायर आएगा शायद. हाँ सर. और a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर भी आएगा. तो भाई पहले में b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में a स्क्वायर, और फिर ऐड कर सकते हैं. हाँ, जरूर कर सकते हो. और cos स्क्वायर को आइसोलेट कर सकते हो. cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर,
और साइन स्क्वायर थीटा होगा y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन 1. It just looks pretty from a mathematician point of view. Cos square is x square by a square, sin square is y square by b square, और दोनों को ऐड कर दिया. कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, that is your job. One minute, let me check somebody. Aryan पहले सही भेजा था सब, and that's right Aryan. Aryan, the only thing is एक में B है यार, बाकी तेरा इंटेंशन सही है. सॉरी सर, ये जो फोटो है वो तेरा फोटो है? इस पे जो फोटो लगा है जूम पे, तेरा ही फोटो है? हाँ तेरा ही है, मोस्टली आईडी कार्ड है तो तेरा ही रहेगा. और मैत्रेयी, आर यू देयर? आदित्य डाउट है तो पूछना. सेम विथ ओजल, पीयूष, पर्व. थोड़े लोगों ने बिल्कुल बात ही नहीं है पूरे क्लास में. ओके ओके आदित्य. श्योर ओजल. Okay, fourth question, just isolate the trigonometry part. We can say that sec theta equals to x by a, tan theta equals to y by b. And बस खुद का दिमाग लगाओ, sec theta tan theta को eliminate कैसे करें. आर्यन इज राइट. हाँ बोलो बोलो सानवी. अच्छा नहीं सर, आई थिंक मैंने वो रॉन्ग लिख लिया. फोर्थ वन मैंने y इक्वल्स टू b sin थीटा ले लिया था. a sin थीटा ले लिया था और b tan. नहीं नहीं, b sin थीटा इंस्टेड ऑफ tan थीटा. ओके ओके ओके. Clearly sec square theta minus tan square theta is 1. Clearly sec square theta minus tan square theta is 1. So we can say that x by a the whole square minus y by b the whole square is equals to 1. This is the locus. This is the locus. हो गया. सारे हो गए? नहीं सर, 6 का हो गया. ओके ओके. 7 तो इजी. श्योर. तुम लोग आईपीएल वगैरह फॉलो कर रहे थे क्या? तो सीएसके No, जीतते. मैं भी फॉलो नहीं कर रहा था, बस न्यूज में आता रहता है. तो आज सर ये साल कब चालू हुआ कब खत्म हुआ मेरे को पता भी नहीं आज ही चला. न्यूज पे पढ़ा मैंने कि आईपीएल खत्म हो गया. लाइक इट्स लाइक नोबडी वाज इंटरेस्टेड. मानसी वी क्या है? अच्छा फिफ्थ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. यस दैट इज करेक्ट मानसी.
सर सिक्स्थ वाला कैसे करना है सर? तो क्यूब रूट करके स्क्वायर करना है? 100%। तो उसे बहुत बुरा आंसर आता है। वही बुरा आंसर ही है, वही वही लोकस होता है, हर बार ऐसा प्रिटी नहीं रहता है। ठीक है सर। फिफ्थ वाला कैसे किया गाइस? मल्टीप्लाई That's like Aniruddha said, multiply कर सकते हैं, we can just multiply straight away. X into y, x into y equals to a square times sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is sec square minus tan square, which is 1. So the just locus is xy equals to a square. This is the locus which you have studied in chemistry. PV equals to constant है, ऐसे xy equals to constant है. So इसका locus अगर options में रहेंगे तो rectangular hyperbola would be the most accurate answer. That's right, Aryan. All correct. सर सिक्स्थ वाले का आंसर एक बार बताओगे? मैं जरूर अभी नेक्स्ट वही करूंगा। सिक्स्थ वाले का like Janvi has said, that is the way to do it. Cos cube theta is basically x by a. So cos theta will basically become x by a power 1 by 3, or cos square theta will become x by a power 2 by 3. X by a power 2 by 3. Similarly, we can do the same with sine also. Sine square theta will come out to be y by b power 2 by 3. Sine square theta will come out to be y by b power 2 by 3 in similar lines. So final answer is basically इन दोनों को add करेंगे तो the answer is x by a power 2 by 3 plus y by b power 2 by 3 is equals to 1. So this is the final answer. X by a power 2 by 3 plus y by b power 2 by 3 equals to 1. सर ये किसका इक्वेशन? ये अलग ही चीज का इक्वेशन है, ऐसा साइक्लॉइड करके कुछ होता है, इसका कर्व वगैरह हम लोग करेंगे बाद में, मतलब ऐसा वियर्ड सा इक्वेशन रहता है, हम लोग करेंगे, मतलब अभी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट स्टिल ऐसे कुछ इक्वेशन रहता है, स्टार भी बोलते हैं इसको, इसका एरिया वगैरह भी ढूंढना सीखेंगे हम लोग बाद में, इन सबका एरिया कितना रहेगा एंड ऑल दिस वियर्ड शेप्स विल बी डन लेटर। ऐसे बहुत सारे शेप्स है, सारे शेप्स के नाम लाइक सारे नाम तो इम्पॉसिबल है, वियर्ड से कम से, बट पता नहीं तुम लोगों ने कभी ऐसा, हम लोग तो ऐसे गूगल करके तब टाइम पास करते थे जेई के टाइम पे, बैटमैन कर्व वगैरह सुना है क्या तुम लोगों ने? यस सर। सर मैं डेस्कबॉक्स पे कुछ भी डालता हूँ, कुछ भी मस्त मस्त ग्राफ बनता है। लाइक एक कर्व का इक्वेशन है जिसका ड्रॉ कर तो बैटमैन का शेप आता है, बैटमैन का सिंबल का शेप, फिर ऐसे अजीब अजीब शेप्स है, मतलब ये सारे शेप्स ऐसा है, एक ऐसा शेप होता है, इस शेप का नाम विच ऑफ इग्निशिया करके नाम है, मतलब वो क्योंकि वो विच के हैट के शेप का है, मतलब ऐसा, मतलब ये जस्ट निकनेम्स है गाइस, जस्ट लाइक हाउ पीपल नेम साइक्लोन्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ऐसे ही रैंडम कर्व्स को भी नेम किए हुए, जस्ट पर्सनली नेम्ड बाय सम पीपल। सर आगे के आंसर्स बोलो। हाँ जस्ट अ मिनट, सबके हो गए क्या? एवरीबॉडी डन? और हाँ सर हो गया। ओके ओके, सेवंथ वाला कैसे करना है? सर cos थीटा sin थीटा उस साइड लेके जाके स्क्वायर करके यस, cos थीटा इक्वल्स टू a by x होगा, cos थीटा इक्वल्स टू a by x होगा, और sin थीटा इक्वल्स टू b by y होगा, cos theta a by x, sin theta b by y. Once you get cos theta and sin theta, that's it. The rest of the question is too easy. Square and die. So a by x the whole square plus b by y the whole square equals to 1. किसी से ये समझ जम नहीं रहे तो भी टेंशन की बात नहीं है, लाइक ओवर प्रैक्टिस इजीली हो जाएगा, एक्चुअली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ही,
8th वाला कैसे कर रहे हो? स्क्वायर एंड डिवाइड। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। स्क्वायर एंड डिवाइड सिर्फ y को स्क्वायर करके ना। हाँ सर, y को स्क्वायर करते हैं। वही। फाइनली इक्वेशन ऐसे आना चाहिए, y square equals to 4ax। यस यस सर। यस मानसी, आई एम सॉरी, वो साइक्लॉइड नहीं है, वो स्टार था, मैंने गलती से साइक्लॉइड बोल दिया, वो स्टार का इक्वेशन था। दैट्स इट पृथ्वी, जानवी राइट था। ये अगेन पैराबोला है ना? यस करेक्ट, ये पैराबोला है। ओके, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। आज बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और इंट्रोडक्शन टू लोकस किया था, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सेक्शन फॉर्मूला एंड मोर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल। सर होमवर्क इतना कम है, डू या नहीं, आई एम जस्ट वंडरिंग। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले पे होमवर्क, एक सेकेंड, एसएलओनी का पीडीएफ है क्या किसी के पास बाय चांस? एक सेकेंड, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास हार्ड कॉपी है, तो फोटो डाल दूं क्या? ये तुम्हारा ट्रिग्नो सीक्वेंस एंड सीरीज बुकलेट करने का टाइम है या उसके लिए टाइम दूं आज? सर उसके लिए टाइम दे दीजिए प्लीज। चलेगा। अगर इन द मीन टाइम इफ यू वांट यू कैन बाय दिस बुक, द बुक नेम इज एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरे पास बहुत ही पुरानी बुक है, तो कलर्स वगैरह लाइक दे हैव चेंज। एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस.एल. लोनी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक खरीद के यू कैन स्टार्ट विद वैसे एक्सरसाइज 1 2, दो एक्सरसाइज तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके ठीक है, बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज कर देना। तुम्हारे पास मॉड्यूल वगैरह मिला है क्या? सर 2 मिल गया सर। यस सर, 2 के एंड में स्ट्रेट लाइन है। ओके ओके ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट गिविंग फ्रॉम दैट आल्सो। आज के लिए बस इतना ही तो गाइस। स्टार्ट कर सकते हैं क्या मॉड्यूल? बाय। एक क्लास रुकेगा तो और इजी रहेगा। अगर तूने पहले से ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह पढ़ा है तो कर सकता है, मे बी टफ लगेगा स्टार्टिंग में, एक हफ्ते के बाद इजी लग जाएगा, नेक्स्ट वीक के बाद। ओके ओके।